Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday I talked about the literary terms, and today I'm going to start with the poem September, the First Day at School by Howard Nemerov. Okay, before I start with the poem, I want to discuss about the poet. Okay, he was born in New York. He got education from Harvard, and then he opted teaching as career. He had been the teacher for many years in the Howard University, and then he wrote 3 novels and a critical book that was Figure of Thought. And he won the Pulitzer Award in 1977. ये जो पुलिट्जर अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है फॉर एन अचीवमेंट इन अमेरिकन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक, एंड दे आर 13 made each year, right? So before I start with the poem, through the title of the poem, you people must understand that this was the first day of a student at school, right? And the September is the month when the session starts, the autumn session starts in most of the European countries. So over here the poet is talking about his son's first day at school and all the memories of his first day at school, and how the father feels about his son's first day at school, the thought of the father, the reaction of the son. It is being explained over here. Secondly, I talked about the literary terms yesterday, and among them there was strophe. And what was that strophe? Strophe was unrhythmic and unmusical lines, and these are like free verse. Over here you can see कि आपके पास ये जो 6 लाइन्स हैं उसमें राइम स्कीम क्या है वो आपको नज़र नहीं आ रही है. स्कूल है, डोर है, डस है, हाउ है, गो है. तो लास्ट 2 लाइन्स दे राइम विद वन एंड अदर. सो जब हम इसको रीड करेंगे यू विल सी दैट इट इज़ अनरिथमिक एंड इट इज़ अनम्यूजिकल एज वेल. My child and I hold hands on the way to school, and when I leave him at the first grade door, he cries a little, but he is brave. He does let go. My selfish tears remind me how I cried before that door a life ago. I may have had a hard time letting go. अब इस पूरी स्ट्रॉफी में हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ स्ट्रॉफी? 6 लाइन्स मैंने इसमें रखी हैं, और इन 6 लाइन्स में यू कैन सी दैट देयर इज़ नो रिदम, देयर इज़ नो म्यूज़िक. इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्री वर्स कि जिस तरह मर्जी उसको चलाएं, फ्लो ऑफ थॉट चल रहा है, लाइन के साथ मैच नहीं कर रही है. लेकिन इवन देन इट इज़ अ टेक्निक in poetry where you can express your views, your thoughts in a free verse. So क्या इसमें poet, what does he want to say? He was talking about his child. My child, whose child is? That is poet's child. My child and I hold hands on the way to school. Where they were going, they are going to school. So when I leave him at the first grade door, कहाँ पे छोड़ रहा है कि जो उसका फर्स्ट ग्रेड है या पहली क्लास है उसकी, उसके दरवाजे के ऊपर जो है, he was going to leave him over there. If you recognize your own childhood period and your brothers and sisters childhood period when they got admission in their first grade school, then what was the feeling of a father and what was your feeling at that time? Or your brothers and sisters feeling at that time? क्या होता है बच्चे, they yell, they cry, they weep a lot when they enter into the school. So and he cries a little. So happened with that child as well. He cries a little but is brave. लेकिन पोइट ने क्या कह दिया साथ में कि उससे रोया है लेकिन इतना भी नहीं रोया है, but he is brave. He does let go. What he did, he let his father go. So my selfish tears remind me how I cried before that door a life ago. He also relates his feeling of childhood with that of his child कि मैं तो बड़ा रोया था, और काफ़ी अर्सा पहले जब मैं I was a student at that time I also cried before entering into that door. And my selfish tears at that time when the child was weeping, definitely father had become emotional. He had the tears in his eyes as well. This is the love of father for a child. We as a parent don't see or do not want to see our child to weep. So I may have had a hard time letting go. अब क्या कह रहे फादर
कहते कि भी मुझे उसको छोड़ना, इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी व्हेन द चाइल्ड वाज वीपिंग, बट आई हैव टू लेट हिम go. So over here I have given you a brief description of these lines. क्या है? The first trophy tell us how the father takes his child to school and how the child cries a little but then let go his father's hand. The father also had tears in his eyes. He recalls the day when his father took him to school. This is a brief description of the stanza. Okay, then the next strophe. इसमें क्या है? You can see over here together alone, integers, staff, preemptory. So there is no line that rhyme with the other one. You will see no music in the reading of the lines. So each fall the children must endure together what every child also endures alone, learning the alphabet, the integers, 3 dozen bits and pieces of a stuff, so arbitrary, so preemptory. अब each fall, फॉल क्या है? दैट वाज द ऑटम फॉल. सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, तो उसने कहा कि सितंबर में ईच फॉल, हर सितंबर को क्या होता है, हर न्यू एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, दे मस्ट एंड्योर टुगेदर, चिल्ड्रन मस्ट एंड्योर, मैनी चिल्ड्रन दे कम टू द स्कूल एंड दे ऑल टुगेदर हैव टू बियर वट एवरी चाइल्ड ऑल्सो एंड्योर्स अलोन. और हर बच्चे को भी, एवरी चाइल्ड एट देयर ओन, दे हैव टू एंड्योर, they have to bear alone learning the alphabet. अब हम together we go to the school, together we sit in the classes and we learn a lot as a student. So and at their individual level they also learn different things, learning the alphabet, the integers, 3 dozen bits and pieces of a stuff, so arbitrary, so preemptory. क्या वो कह रहा है? कहता है कि ये सब चीज़ें, ये जो सब स्टफ़ है, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और सब बहुत सा स्टफ़ जो है वो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं थ्रू आउट द स्कूल. तो कहता है ये सारे का सारा जो है वो बहुत एब्सोल्यूट होता है, सो आर्बिट्ररी होता है एंड सो प्रीएम्प्टरी होता है, बहुत अथॉरिटेटिव होता है. अथॉरिटेटिव इन अ सेंस दैट वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ऑल दैट स्टफ़. ठीक है, इन चीज़ों को, इसमें कोई तब्दीली हम नहीं लेकर आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं हम पढ़ सकते हैं. वट एवर वी आर टॉट एट द स्कूल वी हैव टू लर्न ऑल दैट. सो ओवर हियर वो क्या कहता है कि हर सितंबर में हर बच्चे को वट दे हैव टू डू, दे हैव टू एंड्योर टुगेदर the learning process. It goes on in the school that every child has to absorb. और अपने इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट और भी बहुत कुछ सीखता है, एज द स्कूल इज़ द प्लेस वेयर वी लर्न डिफरेंट थिंग्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. सो in this second strophe we see the father falling into thinking about children at school and how he has to endure whatever goes on in school, good or bad. He refers the stuff children learn at school as unreasonable and authoritative, before which everyone has to bow down. हर बंदे को, हर बच्चे को when he enters into the school, उसकी environment में whatever they get from that environment they have to learn all that, either it's good or bad. लेकिन ये सब कुछ इतना authoritative होता है कि one has to bow down before all that knowledge. Okay, as in Joseph's dream, the sheaves bowed down and then the stars bow down before the dreaming of a little boy. That dream got him such hatred of his brothers as caused the greater part of life to mend, and yet greater kindness came of it in the end. ओके, यहाँ पे क्या है, illusion की टर्म इस्तेमाल की थी मैंने. व्हाट इज़ दैट illusion? इट्स नॉट illusion, इट्स illusion. illusion में क्या है कि रेफरेंस दिया जाता है फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द फिलोसफी. सो यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया है ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम. हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क्या हिस्टोरिकल रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था, तो उनके ख्वाब के सामने जो है उसमें क्या था कि जो दरख्त थे, जो सितारे थे, ईच एंड एवरी थिंग वॉज गोइंग बिफोर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम. यहाँ पे और उस ख्वाब का नतीजा क्या था, व्हेन ही डिस्कस्ड दैट ड्रीम विद हिज ब्रदर्स, तो देन व्हाट हैपेंड, ही हैड won the hatred of his brothers because they had come to know about his prophethood. So they have become so jealous of him and hatred of his brothers he won as he discussed that dream with them.
सो एज कॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइफ टू मैन। अब उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी इस बात के उसमें ही गुजर गई जब उन्होंने इस हेट्रेड के लिए उनकी ज़िंदगी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ है वो इस हेट्रेड को ख़त्म करने में निकल गई। और क्या है इसका, बट द रिज़ल्ट वॉज दैट ग्रेटेस्ट काइंडनेस इट केम इन द एंड। ठीक है ना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने ख्वाब का ज़िक्र किया, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जब मिस्र के बाज़ारों से गुज़रे थे तो उस वक्त क्या था कि अभी हर चीज़, जो शीव्स थे, जो क्रॉप्स थे और जो स्टार्स थे, वो सब उनको सजदा कर रहे थे। और इनके ख्वाब का ज़िक्र जब उनके भाइयों के सामने किया गया तो भाइयों ने क्या किया, उनके साथ नफ़रत का इजहार किया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाकी मानदा ज़िंदगी जो है वो उनकी इस नफ़रत की नज़र हो गई थी। और लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैड बिकम द प्रॉफिट एट द एंड, एंड ग्रेटेस्ट काइंडनेस केम इन द एंड व्हेन द ब्रदर्स दे केम फ्रॉम पैलेस्टाइन टू गेट हेल्प फ्रॉम हिम। तो उस वक्त उन्होंने अपने भाइयों के साथ रहमदिली का मुज़ाहरा किया था। सो अब इस इल्यूजन का यहाँ पे ज़िक्र करने का मकसद क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को, मतलब व्हेन द पोइट वाज टॉकिंग अबाउट द September, the first day at school, he was talking about his son, about his child, that how he had become emotional to send his child to school, and the son was also crying, but he had to leave his son, he had to control his emotions, and he had to leave his son over there in the school in order to make him to get the reward of that education that he would get in the school. So उस को इसके साथ कैसे हम रिलेट करेंगे, इस तरह से रिलेट करेंगे कि जिस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया, हर तरह का जो है वो हेट्रेड अपने भाइयों की या जो ज़िंदगी की मुश्किलात थी, प्रॉफिट होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, इन सब मुश्किलात का सामना किया था। तो इसी तरह से एक बच्चा जब स्कूल में कुछ लर्न करने के लिए जाता है तो उसको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ही हैज़ टू बियर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज़। तो उन प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज़ को जब बेयर कर लेता है तो एट द एंड जो है ही वुड बी रिवॉर्डेड, राइट। सो अगर हम लास्ट लाइन्स देखें, द माई चाइल्ड हैज़ डिसअपीयर्ड बिहाइंड द स्कूल रूम door, and should I live to see his coming forth a life away? I know my hope, but do not know its form, nor hope to know it. May the fathers he finds among his teachers have a care of him more than his father could. How that would look, I don't know. I don't need to know. Even our tears belong to ritual, but may great kindness come of it in the end. अब क्या हुआ, अब उस लीजन को सोचते हुए फिर उसने क्या देखा, उसने कहा कि चाइल्ड ही हैड डिसअपीयर्ड बिहाइंड द डोर, एंड कहते हैं शुड आई लिव टू सी हिज कमिंग फोर्थ अ लाइफ अवे। अब उसको स्कूल में दाखिल करने का मतलब क्या उसका है, उसने कहा कि बी आई हैड पुट हिम इनटू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ओवर देयर। अब क्या है, व्हेन ही वुड कम आउट ऑफ इट तो क्या होगा, कहते हैं कि भी क्या मैं मतलब आई वुड रिमेन ओवर देयर टू सी दैट हाउ ही हैड बिकम अ बिग पर्सनैलिटी। कहते हैं आई नो माई होप बट डू नॉट नो इट्स फॉर्म। आई होप दैट ही वुड गेट द एजुकेशन फ्रॉम देयर एंड ही वुड बिकम एन एजुकेटेड पर्सन। कहते हैं मुझे पता है, आई होप दैट ही वुड गेट द बेस्ट फ्रॉम देयर, बट आई डोंट नो इट्स फॉर्म, कि भी वो किस फॉर्म में आता है, नॉट होप टू नो इट। मे द फादर ही फाइंड्स, और फिर एक्सपेक्ट करता है कि अपनी इस स्कूल में उसको जो टीचर्स मिलते हैं उसको फादर लाइक मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आइदर दे वुड केयर ऑफ हिम एज अ फादर और नॉट। हाउ दैट वुड लुक आई डोंट नो। कहते कैसा दिखेगा ये, मतलब उसके जो फादर होंगे, द टीचर्स ओवर देयर, हाउ वुड दे ग्रूम हिम, हाउ वुड दे पॉलिश हिम, हाउ वुड दे चेंज हिज पर्सनैलिटी, आई डोंट नीड टू नो। और इवन वो ये कहता है वी हैव अ बिलीव इन आवर टीचर्स, वी हैव अ बिलीव इन आवर एजुकेशन। जब बच्चे को हमने सेंड कर दिया ओवर देयर तो वहाँ से ही वुड गेट समथिंग गुड एज ही वुड गेट द फादर लाइक फिगर्स ओवर देयर, ही वुड गेट अ प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम देयर एंड ही वुड कम आउट फ्रॉम देयर एज अ पॉलिश्ड पर्सन, एज अ ग्रूम्ड पर्सन। कहता है आई होप फॉर दिस थिंग
And then he said that when I was sending my child to the school, even at that time the tears belong to ritual, these were ceremonial. वो ऐसे ही है जैसे crocodile's tear है, इमोशनल हो के हमने क्या किया कि रस्मन जो है वो आंसू हमारी आंखों में आते हैं. और what we expect that may great kindness come of it in the end. जिस तरह से हज़रत यूसुफ के मामले में हम कहते हैं कि वो ग्रेट काइंडनेस कम ऑफ इट इन द एंड, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि बी आफ्टर बेयरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द चैलेंजेस, ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्कूल लाइफ, तो वहाँ पे वो सब कुछ फेस करने के बाद माई चाइल्ड वुड बी ग्रूम इनफ दैट ही वुड बिकम अ रियली अ पॉलिश्ड पर्सन, अ ग्रूम्ड पर्सन, एंड एजुकेशन वुड टर्न हिम इनटू समथिंग जो कि उसके अंदर जो है वो क्या करेगा, bring a change in him and make him a good human. Okay, thank you very much students. That is all for today. We will discuss about its question answers tomorrow inshallah.